A very good morning to all my dear students. So today what we are going to do? We are going to start with the last topic of your chapter, organization of data. Previously we studied in detail that what do you mean by statistical series and what are the various types of the statistical series. We studied about discrete series, which is also called frequency array. We studied about frequency distribution series, also called continuous series. We studied about individual series or the series where the items are listed individually. At last we started with a topic which I told you that I will explain in the next lecture, and that topic was what are the various types of frequency distribution series or continuous series. So today we are going to start with the types of continuous series or frequency distribution series. Already we have done this in the numericals. Again I repeat, but today we are going to study the theoretical part of this one, which is again very important from the theory point of view. So let's start the first one. You see here, the first is a exclusive series. This is the first type of continuous series or frequency distribution series. What is this? The series in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit, or in this upper limit of the one class interval is the lower limit of the next class interval. Now let's try to understand these two concepts. आओ इन दोनों को ध्यान से समझते हैं. What is the first one? First one is where every class interval excludes the items corresponding to its upper limit. क्या मतलब हुआ? 10 to 15. Class interval is 10 to 15. We will include 10, 11, 12, 13, 14. 15 will not be included here. It will be included in the next class interval. 15 to 20, we will include 15, 16, 17, 18, 19. 20 will be included in the next. तो देखो पहली बात क्या कह रहे हैं, यहां पर हम हर क्लास इंटरवल की जो आइटम है अपर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग उनको एक्सक्लूड करेंगे और उसको अगली क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे. और दूसरी बात देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो. दिस इज इन दिस द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इज द लोअर ऑफ द नेक्स्ट. 15 अपर ऑफ द प्रीवियस, 15 to 20 lower of the next, 20 upper of the previous, and 20 to 25 lower of the next, 25 upper of the previous, 25 to 30 lower of the next. ऐसी सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज भी कहते हैं. इसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहते हैं. नॉर्मली हम ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं. सेकंड हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का दूसरा टाइप है इंक्लूसिव सीरीज. उसमें क्या था, एक्सक्लूड कर रहे हैं वो अपर लिमिट को और अगले में इंक्लूड कर रहे हैं. यहां पर है नाम इंक्लूसिव, लिखा होता है ना एमआरपी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. सभी टैक्स उसमें इन्वॉल्व है. सेम यहां 0 to 4, इसमें 0 भी आएगा, 1 भी, 2, 3 and 4 सभी आएगा. नेक्स्ट हो जाएगा 5 to 9. यहां पर वो वाली बात नहीं होगी. कौन सी? द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द प्रीवियस इज द अपर ऑफ द नेक्स्ट. वो इंक्लूसिव में नहीं होगा. लेट्स सी द सीरीज इन विच या द सीरीज विच इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट. अब 0 to 4 में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है. और इन दिस द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल does not repeat
itself as the lower limit of the next class interval. यहां पर देखो ये 15 रिपीट हो रहा है, 20 रिपीट, 25 रिपीट, लेकिन यहां नहीं है, नो रेपिटेशन. 4 and 5 नो रेपिटेशन, 9 and 10, 14 and 15, 19 and 20, आई एम क्रॉसिंग इट, मतलब इसमें रिपीट नहीं हो रहा. इसको बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज. ध्यान रख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी आपने जो किए हैं इनके बिना तो न्यूमेरिकल निकलेंगे ही नहीं. अभी आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ोगे, वहां भी न्यूमेरिकल करने हैं, तो भी आपको इन सीरीज के बारे में पता होना जरूरी है. मीन, मीडियन, मोड जो कर चुके हैं और पार्टीशन वैल्यू, सभी में ये सीरीज का नॉलेज होना जरूरी है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंक्लूसिव दी गई हो, इसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करें? हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. 3 स्टेप्स हैं इसमें. पहले मुझे यहां से देखो, बाद में मैं रीड करूंगा, ध्यान से देखो. 0 to 4, 5 to 9, तो गैप आ गया ना, 4 है उधर, 5 से शुरू हो गया. तो पहला स्टेप है, टेक द अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास and the lower of the next class and take a difference between these two. 5 minus 4 1, difference आ गया 1. Step number 2, इस difference को reduce कर दो half, और half of the 1 कितना होगा? 0.5. इस 0.5 को माइनस करेंगे लोअर लिमिट से और प्लस करेंगे अपर लिमिट से. माइनस 0.5 to 4.5, 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5. अब कौन सी सीरीज बन गई है? इंक्लूसिव से बन गई एक्सक्लूसिव. देखो वही स्टेप यहां लिखे हैं. इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, टेक द डिफरेंस between the upper limit of the class interval and the lower limit of the next class interval. 5 minus 4 1. Second, half, reduce it to half. इसका हाफ कर दो. अब 1 का अगर मैं हाफ करता हूं तो कितना हो जाएगा? 0.5. 1 को अगर हम हाफ करते हैं, 1 का अगर मैं हाफ करता हूं मतलब 0.5. अब नेक्स्ट क्या होगा? हाफ ऑफ द डिफरेंस व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट गिव्स द लोअर लिमिट एंड एडेड गिव्स द अपर लिमिट. तो आपकी जो सीरीज थी इंक्लूसिव, वो कन्वर्ट हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज में. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड हमारा टाइप, फर्स्ट था एक्सक्लूसिव सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट टाइप. सेकंड हमारा इंक्लूसिव सीरीज, और थर्ड हमने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लिया कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करें. अब हम इसके बाद थर्ड सीरीज पढ़ेंगे, थर्ड टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज कॉल्ड ओपन एंड सीरीज. ओपन एंड का मतलब क्या होता है? किनारे. जिस सीरीज के दोनों किनारे ओपन है. अब किनारे कौन कौन से? जहां से सीरीज शुरू हो रही है पहला किनारा, और जहां वो खत्म हो रही है लास्ट. तो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल, बोथ आर मिसिंग. और उनकी जगह पर क्या लिखा होगा? बिलो इन केस ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल और अबव इन केस ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल. ऐसी सीरीज को ओपन एंड सीरीज कहेंगे. अब इसको रीड करते हैं. इन सम सीरीज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल आर मिसिंग. इंस्टेड लेस देन और बिलो, ये देखो लिखा है बिलो 5, is specified in case of the lower class limit and more than or above, you see here
is specified in case of the upper class limit of the last class interval. Such series is called open end series. Now the question is how to convert it into a simple frequency series. तो प्रैक्टिस क्या रहती है, जो बाकी क्लास इंटरवल्स हैं उस सीरीज के वैसे ही इनको भी कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हमें गिवन है मार्क्स बिलो 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 and above, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 3, 4, 7, 1। अब यहां दिया बिलो 5, तो बिलो 5 में क्या हो जाएगा, सब 5 5 का गैप है, तो ये हो जाएगा 0 to 5, और 20 एंड अबव क्या हो जाएगा 20 to 25। In order to determine the limits of the open class intervals, the practice is to give same magnitude to these class interval, इनको वही गैप दिया जाएगा as is of the other class interval in the series. So this is the third part of continuous series, also called frequency distribution series. Now we come to the fourth type. First exclusive, second inclusive, third open end, fourth cumulative frequency series. The series in which the frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series. क्यूमुलेटिव का तो मतलब यही होता है जोड़। क्यूमुलेटिव रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट UT1, मिड टर्म UT2 एंड फाइनल, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव सीरीज क्या है, जहां फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया जाए। पर ये क्यूमुलेटिव सीरीज भी दो टाइप की है, आपने न्यूमेरिकल्स में पढ़ा है। वन इज बाय लेस देन मेथड, अदर इज बाय मोर देन मेथड। लेस देन में क्या करते हैं, वी कंसीडर द अपर क्लास लिमिट और फिर फ्रीक्वेंसीज को कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करते जाते हैं। और मोर देन में क्या करते हैं, वी कंसीडर द अपर क्लास लिमिट और पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेकर बाकी में से माइनस करते जाते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, हमें एक सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन होगी, उसी से मैं समझाऊंगा पहले लेस देन सीरीज, जो कि आप कर चुके हो न्यूमेरिकल में, लेकिन मैंने कहा ना कि क्योंकि इसमें हमें दोबारा से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो आप उसको ध्यान से सुनते रहो, आपको समझ आ जाएगा। देखो ये हमें सीरीज दी हुई है, मार्क्स 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और फ्रीक्वेंसी दी है 3, 8, 10, 4, 5। पहले हम इसे लेस देन मेथड से करेंगे। मैंने अभी बताया था लेस देन में क्या करेंगे, हम अपर लिमिट को लेंगे। तो कैसे करेंगे, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 और लेस देन 30। अब लेस देन 10, ध्यान से देखो, लेस देन 10 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 हो गया। लेस देन 10 3, लेस देन 15 3 ये भी है और 8 अगला भी है, तो 3 + 8 11। लेस देन 20, अब ये सारा 11 + 10 21। लेस देन 25, 21 + 4 25 एंड लेस देन 30 सारा ही हो गया, ऑल 30, 25 + 5 30। ये बन गई लेस देन मेथड्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसको हम लेस देन सीरीज भी बोलते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, लेस देन CF सीरीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसी को अब हम मोर देन में कन्वर्ट करेंगे। देखो ध्यान से, मोर देन में क्या करेंगे, हम लेंगे लोअर लिमिट, तो मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30। अब देखो
मोर देन 5 तो सारा ही है, तो इन सबका सम आ गया 30। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 30 आ गया। वी टेक हियर 30। मोर देन 10 तो 30 में से 3 माइनस कर दिया 27। मोर देन 15, अब क्या किया, 27 में से 8 माइनस किया 19। इसी तरह से 19 में से 10 माइनस किया 9, 9 माइनस 4 5, एंड लास्ट में याद रखना ये 0 आना चाहिए, फिर समझो कि आप ठीक कर रहे हो। तो ये हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के दोनों टाइप, लेस देन सीरीज जो होती है अपर क्लास लिमिट के बेस पर, मोर देन सीरीज जो होती है लोअर क्लास लिमिट के बेस पर, हमने ये दोनों सीरीज कंप्लीट कर ली। अब हम लास्ट नंबर 5th जो टाइप है, किसका टाइप, कॉन्टिन्यूस सीरीज का, वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है, दो सीरीज इन विच वी हैव ओनली द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल्स। हमें सिर्फ मिड वैल्यूज दी हुई हैं, लिखा हुआ है मिड वैल्यूज और उसके सामने फ्रीक्वेंसी दी, ऐसी सीरीज को मिड वैल्यू सीरीज कहते हैं। अब इसको भी अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है तो 3 स्टेप है, मैं आपको इसका एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1 क्या, पहले दो मिड वैल्यूज का डिफरेंस लो, उस डिफरेंस को हाफ कर दो, उस हाफ को जब मिड वैल्यू में से माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। आओ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें दिया हुआ है मिड वैल्यू 5 15 25 35 45, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 5 11 9 8। अब कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देखो, टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू मिड वैल्यूज, 15 माइनस 5 10, पहला काम हो गया। टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू मिड वैल्यूज, 10 हो गया। रिड्यूस दिस डिफरेंस टू हाफ, हाफ ऑफ द 10 कितना हो गया, 5। इस 5 को मिड वैल्यू से माइनस करो तो आ गया 0, 5 को प्लस किया तो आ गया 10, 0 to 10। 15 में से 5 माइनस किया तो 10 और प्लस किया तो 20, 20 to 30। देखो इसी तरह चलते जाओ। फिर 25 में से 5 माइनस किया 20, प्लस किया 30, 35 में से 5 माइनस किया 30, प्लस किया 40, और 45 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आ गया, और प्लस किया तो 50 आ गया। ये बन गई सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। समझाना और समझना दोनों अलग अलग चीजें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज समझ आ जाए, पर जब तक आप समझना नहीं चाहोगे मेरी हर कोशिश बेकार हो जाएगी। वो तभी सफल होगी जब आपके अंदर ये लगन होगी कि मुझे करना है, मुझे मेहनत करनी है। और अभी आपको मालूम है कोरोना का समय है, हर रोज 50,000 केसेस आ रहे हैं, और आपको पता है कि अभी इतना आसान नहीं है स्कूल्स का खुलना। तो अगर हम अपनी एजुकेशन को, अपनी लर्निंग को बंद कर देंगे तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। कुछ बच्चे जो मैं देख रहा हूं अटेंडेंस में रेगुलर नहीं है, मैं उनको बड़ी क्लियर एक मैसेज दे रहा हूं, आपका बिहेवियर ही डिटरमिन करेगा कि आपके कितने प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे। क्योंकि बेटे रिस्पेक्ट इज अ टू साइडेड प्रोसेस। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट इन लीप्स एंड बाउंड्स। जी कहो, जी कहाओ, तो आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। बट इसी के साथ एक रिक्वेस्ट कि अपना काम साथ साथ करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।